हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट दो लेक्चर में अपन ने देखा था पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। द सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन to that of the applied magnetizing field are known as diamagnetic substances. Number 2, the material which are weakly magnetized in the same direction as that of the applied magnetizing field are known as paramagnetic substances. And number 3, the material which when placed in an external magnetic field strongly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as ferromagnetic substances. आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो यहाँ नंबर 1 दिया है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। तो अपन ने कहा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज्ड in the opposite direction to that of the applied magnetizing field, hence they are weakly repelled by the external magnet. तो नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट क्या रहेगा, दे आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. In case of paramagnetic material, they are weakly magnetized in the same direction, hence they are weakly attracted by the external magnetic field या external magnet. तो paramagnetic substance के केस में they are feebly attracted by the magnet. And in case of ferromagnetic substances, they are strongly magnetized in the same direction. तो अगर ferromagnetic material को external magnetic field में रख देंगे, they are strongly magnetized in the same direction and hence they are strongly attracted by the magnet. Number 2 है in external magnetic field diamagnetism diamagnetic substances acquire feeble magnetization in opposite direction of the magnetizing field. They are weakly magnetized in opposite direction to that of the external magnetizing field. In case of paramagnetic substances, they are feebly magnetized in the same direction of the magnetizing field. And in case of ferromagnetic material, they are strongly magnetized in the direction of magnetizing field. Number 3 है in a non-uniform magnetic field. अब देखो यहाँ diamagnetic substance when placed in a non-uniform magnetic field, they have a tendency to move from stronger part of the field to the weaker part. तो नंबर 3 है tends to move slowly from stronger part to the weaker part of the field. Paramagnetic substance क्या था, weakly attracted by the magnet, hence they have a tendency to move from weaker part of the field to the stronger part. So paramagnetic substance tends to move from weaker part of the field to the stronger part. And in case of ferromagnetic material, they quickly align itself या quickly move from weaker part to the stronger part of the field because they are strongly attracted by the magnets. Okay. Number 4, in a uniform magnetic field. तो जैसे मैंने कहा था कि diamagnetic material have a tendency to move from stronger part to weaker part. And if a diamagnetic material is placed in uniform magnetic field, they align itself at right angle to the direction of field. So a freely suspended diamagnetic rod align itself perpendicular to the field because it has a tendency to move from stronger part to the weaker part. But paramagnetic material have a tendency to move from weaker part to stronger part, so it align itself parallel to the field. It align itself parallel to the field. And similarly, ferromagnetic material also have a tendency to move from weaker part to stronger part. So अगर इसको भी अगर uniform magnetic field में रखेंगे, they align itself parallel to the direction of field. Okay. Susceptibility. अब जैसे मैंने कहा था कि how easily a substance can be magnetized is measured in terms of susceptibility. और अपन ने देखा था कि diamagnetic material में वो वीकली मैग्नेटाइज होगा इन अपोजिट डायरेक्शन. तो कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करो, वो खुद को वीक मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन रहेंगी अपोजिट. तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, स्मॉल एंड नेगेटिव. पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा, वो वीकली मैग्नेटाइज होगा इन द सेम डायरेक्शन, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी, लार्ज एंड पॉजिटिव. तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो susceptibility of diamagnetic material is small and negative. Why? Because they are weakly magnetized in opposite direction.
susceptibility of paramagnetic material is small and positive. Again it is weakly magnetized in the same direction, and susceptibility of ferromagnetic material is very large and positive, greater than 1000. Okay, मतलब they strongly magnetize in the direction of magnetizing field, even though the external magnetizing field क्या है, weak. Relative permeability. अब देखो permeability मतलब क्या, the ability of magnetic line of force to pass through the medium, या उस मीडियम की प्रॉपर्टी कितने मैग्नेटिक लाइंस को अलाउ करेगा टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो अपन ने देखा था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल, few line of force prefer to pass through paramagnetic material, and all line of force prefer to pass through ferromagnetic material. तो सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी किसकी रहेगी, फेरोमैग्नेटिक की, और सबसे कम क्या रहेगी, डायमैग्नेटिक की. तो देखो यार, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1. इसका मीनिंग क्या होता है कि लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू देम. पैरामैग्नेटिक मटेरियल परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1. स्लाइटली ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या होगा कि फ्यू लाइन ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू देम. एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000. सराउंडिंग के भी जो मैग्नेटिक लाइंस थे वो भी उसमें से क्या हो गए, पास. तो उसकी परमिएबिलिटी क्या है, मैक्सिमम ग्रेटर देन 1000. रिलेटिव परमिएबिलिटी हुआ, ये हो गया परमिएबिलिटी वैल्यू. अब देखो यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो डायमैग्नेटिक के केस में इट इज लेस देन वैक्यूम, पैरामैग्नेटिक के केस में ग्रेटर देन वैक्यूम, एंड इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट इज मच ग्रेटर देन द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब देखो यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायमैग्नेटिक मटेरियल. तो ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ा या कम होगा उसका डायमैग्नेटिक के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी फर्क गिरेगा नहीं. नंबर 2, पैरामैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे अपन ने देखा था कि ईच एटम ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. इनिशियली दे आर ओरिएंटेड इन अ रैंडम डायरेक्शन. जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऑल द एटॉमिक मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड मटेरियल एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म. और मैंने ये भी कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, एटम एंड मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हीट एनर्जी एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. उस कंसेप्ट को अपन ने कहा था थर्मल एजिटेशन. एंड बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन the regular alignment of the atomic magnet get disturbed and material loses their magnetic property. So जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतनी उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी, कम. मतलब एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी. वो कैसी है, वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल susceptibility decreases with temperature in a complex manner. तो susceptibility equal to 1/T minus Tc. वो Tc को अपन ने कहा था Curie temperature और T be the temperature of the body. तो susceptibility varies inversely proportional to the excess temperature of the body over the Curie temperature. Okay, और उसको अपन ने कहा था Curie-Weiss law. Next है removal of magnetizing field. अब देखो यहाँ मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड. डायमैग्नेटिक मटेरियल में जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे तब तक वो एक्वायर करेगा मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन. तो उसका रीजन आपको पता है कि इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एटम्स ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट. 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैंसल. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0. बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद स्पीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो ईच एटम गेट अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट. बट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैंने रिमूव कर दिया तो स्पीड सबके इक्वल कांस्टेंट हो जाएंगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी इक्वल एंड अपोजिट. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, 0. सो रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड. यहाँ पे भी एज सुन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव, मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट बिकॉज
ड्यू टू थर्मल एजिटेशन रेगुलर अलाइनमेंट गेट डिस्टर्ब। जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा एंड एटॉमिक मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बट एज सुन एज द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव, torque is removed and the regular alignment get disturbed and material loses their magnetization. In case of ferromagnetic material, magnetization is retained even after the magnetizing field is removed, and that's why a ferromagnetic material is used for producing a permanent magnet. Variation of magnetization with H. तो यहाँ पे magnetization changes linearly with H. Magnetization changes linearly with H. In case of paramagnetic material, magnetization changes linearly with H and attain a saturation at low temperature and in a strong field. मतलब देखो अगर टेम्परेचर कम है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो जितना टेम्परेचर कम और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़्यादा उतना रेगुलर अलाइनमेंट ज़्यादा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, थर्मल एजिटेशन, रेगुलर अलाइनमेंट गेट डिस्टर्ब, मटेरियल लूजेस देयर मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन चेंजेस लीनियरली विद एच। और इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन चेंज विद एच नॉन लीनियरली एंड अल्टीमेटली अटेन अ सैचुरेशन। हिस्टेरिसिस इफेक्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। हिस्टेरिसिस इफेक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिलेंगे और फेरोमैग्नेटिक नॉर्मली इन सॉलिड्स। एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक, बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, N2 एंड STP, H2O, NaCl, यहाँ पे एल्यूमिनियम, सोडियम, CaO2 और आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, अल्निको। दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्टिंक्शन या डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, हेंस they are weakly attracted by the external magnet and hence it has a tendency to move from weaker part of the field to the stronger part. And in case of ferromagnetic material, they are strongly magnetized in the same direction and hence it has a tendency to move from weaker part to stronger part. So para and ferro have a tendency to move from weaker part to stronger part. Only diamagnetic material have a tendency to move from stronger part to the weaker part. तो ये हो गया आपका origin of diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism और distinction या difference in the property of di, para and ferromagnetism. ओके, इसके बाद का भी टॉपिक है हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस। सो इट इज ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H एंड मैग्नेटिक इंडक्शन B। तो यहाँ पे दिया है B along y axis and H along x axis. So this type of graph is called as hysteresis loop. अब देखो यहाँ, when ferromagnetic sample is placed in a magnetizing field, the sample get magnetized by induction. As magnetizing field H varies, the magnetic induction B does not vary linearly with H. जैसे इंटेंसिटी H बढ़ाएंगे, magnetic induction B does not vary linearly with H. That is the permeability mu is not constant but varies with H. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो B और H का ग्राफ ये नॉन लीनियर है, तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लूप। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए देखो यार, अपन यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे। अब जैसे आपको बताया कि फेरोमैग्नेट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन, फेरोमैग्नेट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन, तो दिस रीजन आर कॉल्ड एज डोमेन, दिस रीजन आर कॉल्ड एज डोमेन। ईच डोमेन possess अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट ज़्यादा रहेंगे, एक ही दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फेरोमैग्नेटिक सैंपल है ये है अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है। ओके, अब जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H बढ़ाएंगे, दिस एटॉमिक मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ, दिस एटॉमिक मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द मटेरियल बिकम कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड। और अगर यहाँ मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, अगर मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज,
ठीक है, तो उसमें से फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। तो ग्राफ इस तरह आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इनिशियल ग्राफ, इनिशियल पॉइंट O है, यहाँ पे ऑल एटॉमिक मैग्नेट कैसे रैंडम डायरेक्शन ले, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल कितना रहेगा, 0। ये क्या रहेगा, अनमैग्नेटाइज स्टेट में। जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, टॉर्क एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेट एंड दे अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। तो जब H मैक्सिमम रहेगा तो ऑल द एटॉमिक मैग्नेट अलाइन पैरेलल टू द फील्ड एंड मटेरियल इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज। तो फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम किया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैंने डिक्रीज किया है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट few of the atomic magnets still align parallel to the field, few atomic magnets still align parallel to the field, और remaining क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, बट इस डायपोल के वजह से दे अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, मटेरियल रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन देखो पॉजिटिव वैल्यू है, इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 0, बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू द मटेरियल क्या रहेगा, मैक्सिमम। मतलब इट रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन, इट रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब मैंने क्या किया, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी रिड्यूस करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये रेगुलर अलाइनमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। ये रेगुलर अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, और मटेरियल लूजेस देयर मैग्नेटिज्म कंप्लीटली, मटेरियल लूजेस देयर मैग्नेटिज्म कंप्लीटली। तो अगर इसको अगर नाम देंगे OA, B, C, D, E, F, तो देखो यहाँ इनिशियल ग्राफ OA है, तो जैसे H बढ़ेगा फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये नॉन लीनियर इंक्रीज हो रहा है। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम, मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज। अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम कर दिया तो टॉर्क ऑन द एटॉमिक डायपोल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, फिर भी मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। मतलब इवन दो द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू 0, मटेरियल डज नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली, इट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। तो ये जो OB है इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी, और जो मैग्नेटिज्म लेफ्ट है उसको बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अगर ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा, H अप्लाई करूँगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो रेगुलर अलाइनमेंट क्या हो गया, डिस्टर्ब, एंड मटेरियल लूजेस देयर मैग्नेटिज्म। तो ये जो OC है इसको बोलेंगे कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मीनिंग क्या होता है, द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड, द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू 0, उसको बोलेंगे कोर्सिविटी। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैंने बढ़ाते गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब एटॉमिक मैग्नेट जो है वो अलाइन होंगे पैरेलल टू द फील्ड एंड मटेरियल अगेन कंप्लीटली मैग्नेटाइज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम करो, रेगुलर अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, रेगुलर अलाइनमेंट स्लाइटली क्या होगा, डिस्टर्ब, एंड मटेरियल लूजेस देयर मैग्नेटिज्म स्लाइटली। मतलब अगेन यहाँ पे OE जो है इसको बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू 0 बट इट रिटेन सम मैग्नेटिज्म। अब ये जो लेफ्ट हुआ है मैग्नेटिज्म इसको भी रिमूव करना है, तो H अप्लाई करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो OF जो है इसको बोलेंगे कोर्सिविटी, द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू 0। तो इस वैल्यू पे फिर से एटॉमिक मैग्नेट क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। फिर से H बढ़ो इन द सेम डायरेक्शन, ऑल द एटॉमिक मैग्नेट अलाइन पैरेलल टू द फील्ड एंड मटेरियल बिकम कंप्लीटली मैग्नेटाइज। तो इस प्रकार की साइकिल को क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लूप, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन।
ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। नंबर 1 रिटेंटिविटी मतलब क्या एंड हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एच इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस लूप। तो देखो यहाँ फिर से, व्हेन फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड द सैंपल गेट मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन as the magnetizing field H varies, the magnetic induction B does not vary linearly with H. That is, the permeability mu is not constant but varies with H. In fact, it also depends upon the past history of the sample. अब देखो यहाँ figure show the variation of magnetic induction B with magnetizing field H. Point O represent the initial unmagnetized state of ferromagnetic sample. As the magnetizing field intensity H increases, the magnetic induction B first gradually increases and then attain a constant value. देखो, first gradually increases and attain a constant value. अब इसके बाद H भी बढ़ाया तो intensity of magnetization बढ़ेगा क्या? नहीं, because all the atomic magnet align parallel to the field. In other words, the magnetic induction B saturate at a constant value of H max. Okay. अब देखो यहाँ, now if the magnetizing field intensity H gradually decrease to 0, B also decreases along a new path AB. B also decreases along the new path AB. It is found that the magnetic induction B does not become 0 even when the magnetizing field H is 0. Magnetizing field H 0 है, but induction की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. That is, sample does not demagnetize even when the magnetizing field has been removed. So the magnetic induction left behind the sample after the magnetizing field has been removed is called as residual magnetism or retentivity. देखो यार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव कर दिया फिर भी उसमें मैग्नेटिज्म लेफ्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी. एंड टू रिड्यूस द मैग्नेटिज्म टू 0, ये जो मैग्नेटिज्म है इसको 0 करना है. द फील्ड H इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड द इंडक्शन B डिक्रीजेस बिकॉज मटेरियल बिकम अनमैग्नेटाइज्ड एंड 0 at a value of H equal to OC. At a value of H equal to OC, the value of reverse magnetizing field intensity H, OC को क्या बोलेंगे? The value of reverse magnetizing intensity H required for residual magnetism to become 0. ये residual magnetism को 0 करना है तो रिवर्स वैल्यू जो लगेंगी उसको क्या बोलेंगे? कोर्सिविटी. तो आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है. कोर्सिविटी मतलब क्या? The reverse value of magnetizing field required. The reverse value of magnetizing field required to reduce the residual magnetism to 0. उसको बोलेंगे कोर्सिविटी. ओके. और रिटेंटिविटी मतलब क्या? The magnetism left in the material even after the external magnetizing field is reduced to 0. उसको बोलेंगे रिटेंटिविटी. ओके. अब यहाँ पे देखो, the closed curve ABCDEFA, जो closed curve था ABCDEFA which represent the cycle of magnetization of ferromagnetic sample is called as hysteresis loop. क्या बोलेंगे उसको? hysteresis loop. अब what is the significance of hysteresis loop? अब जितना एरिया अंडर द hysteresis loop ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा? ज़्यादा. ठीक है. तो देखो यहाँ जैसे अपन बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक सॉफ्ट एंड कोर यूज़ करते हैं. सॉफ्ट एंड कोर क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उसका एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप कम है, मतलब साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में कम एनर्जी खर्चा होंगी. तो ऐसा मटेरियल सॉफ्ट एंड कोर में ट्रांसफार्मर में कोर करके यूज़ करेंगे. जैसे सॉफ्ट एंड कोर है कि जिसका एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप क्या रहेगा? कम. ठीक है. तो सिग्निफिकेंस क्या है? द प्रोडक्ट BH, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H has the dimension of energy per unit volume. Has the dimension of energy per unit volume. Hence the area within the BH loop represent the energy dissipated per unit volume. Area क्या represent करने वाला है? Energy dissipated per unit volume in the material when it is carried through the cycle of magnetization. Okay. तो जितना एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी लॉस
ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा, ज़्यादा। ओके, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द मटेरियल इवन दो द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी एंड मैग्नेटिज्म लेफ्ट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और कोर्सिविटी मतलब क्या, द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो, उसको बोलेंगे कोर्सिविटी। और एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप जितना ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा, ज़्यादा। ओके, अब देखो यहाँ कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयन एंड स्टील। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट आयन दिया है, उसका हिस्टेरेसिस कर्व, और ये जो सेकंड है वो है स्टील का। अब देखो यहाँ नंबर 1, परमियाबिलिटी फॉर ए गिवन H B is more in a soft iron, that is magnetic induction is more in a soft iron than steel, तो soft iron has greater permeability than steel। ठीक है, soft iron has greater permeability than steel, मतलब soft iron और steel को external magnetizing field में रख दो, soft iron कोर जो है उसकी permeability क्या रहेगी, ज़्यादा as compared to the permeability of steel। नंबर 2, susceptibility, as permeability of soft iron is greater than steel, तो soft iron core has greater susceptibility than steel, मतलब soft iron core क्या होगा, easily magnetize होगा as compared to the steel। steel भी magnetize होगा but it will take stronger value of H। नंबर 3, retentivity, देखो यहाँ soft iron की retentivity ज़्यादा है as compared to steel। ठीक है, मतलब वो easily magnetize हो जाएगा और मैग्नेटिज्म भी रिटेन रखेगा इवन दो द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, तो उसकी रिटेंटिविटी क्या है, ज़्यादा। एंड इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयन यूज करते हैं एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, सो रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयन इज लेस देन द कोर्सिविटी ऑफ स्टील, मतलब रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो। इन केस ऑफ सॉफ्ट आयन क्या है, कम, तो उसको इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, बट स्टील को अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो इसको लार्ज वैल्यू ऑफ H लगेंगी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई स्टील आर प्रिफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट एंड सॉफ्ट आयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हिस्टेरेसिस लॉस, एज द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इज hysteresis loss of soft iron is much smaller than that of steel। hysteresis loss चाहिए is much smaller than that of steel, so hysteresis loss per unit volume per cycle is less for soft iron than steel। मतलब यहाँ देखो, अगर आपको ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है, दो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन और स्टील, तो दोनों में से आप सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे क्योंकि उसका एनर्जी लॉस ये क्या है, कम, एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप कम है, तो वहाँ पे साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में लॉस ऑफ एनर्जी क्या होंगी, कम। अगर आपने स्टील यूज किया तो उसमें लॉस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा, ज़्यादा। एंड दैट्स व्हाई वी प्रिफर सॉफ्ट आयरन कोर फॉर मेकिंग कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, so these are the comparison of magnetic properties of soft iron and steel। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।